Side effect is if you are doing anything with your idea, then you can mess up anything. But if you are doing anything with what your body is saying, if you are in sync with your body and doing anything, nothing has got side effect. So living naturally, the way nature functions, the way your body is functioning, this is one of the recipe for good health. The problem is my idea about everything. So your idea is called as prajna aparadha. Any kind of disease happens because of prajna aparadha. Suppose we tell you to hold your breath and your body is saying, oh, not now, I can't hold it beyond this point, and you still hold it. What will your body do? Your body will make you faint. Is fainting bad? No, your body is just trying to protect you. In the history of humankind, nobody has died because of holding the breath. Somebody has to hold your breath, isn't it? So we do not have any example of wrong effect or a side effect of this. We do not have any example. Consciously somebody has done something wrong, because your body will come in between. Whenever you go beyond a certain threshold, your body will intervene and get it corrected. So the only wrong thing is your idea. Any natural process doesn't have side. Is there a side effect of heartbeat? Is there a side effect of heartbeat? Is there a side effect of digestion? If you put something wrong, maybe your digestion will go haywire. That's a different thing. But digestion by itself cannot be wrong. Can breathing be wrong? Even if you're feeling difficulty in breathing, the difficulty is caused by many other things, because of the environment is not so good, it's too much polluted, or you have taken a lot of medicine, you're putting a lot of medicine in your body, and your body is not feeling comfortable with it. So your heart has become weak, your liver has become weak. That is a different kind of different kind of thing. But can breathing be wrong? No, breathing cannot be wrong. Can digestion be wrong? No, digestion cannot be. Can action be wrong? What you are basically asking is there a side effect of doing activity? Because you do any activity through kumbhak. Without kumbhak, can you do any activity? So you are asking, जीने के नुकसान हैं क्या? बिल्कुल, आप कुछ और गड़बड़ करेंगे तो उसका नुकसान है, मगर जीने का अपने आप में कोई नुकसान नहीं है. There is no side effect of life. But if you do not do it, if you do not conduct it in a right manner, you will not feel comfortable. So kumbhak is a natural phenomena. The ability of your body to do action. You can't do any action without kumbhak. Your organs cannot do any action without kumbhak. So if you say, is there a side effect of kumbhak, you are basically asking, is there a side effect of living a life itself? No, not at all. But your idea can do anything or can make anything bad. Don't do anything with your idea. Do everything with darshan. See how things happen within your body, what your body is saying, what nature is saying. This is called as dharma. Neglecting your idea while living your life is swadharma, making yourself down and listening to every other life factors is called as स्वधर्म. So स्वधर्म नहीं करेंगे तो सब कुछ गलत है, करेंगे तो सब कुछ अच्छा है. कुंभक तो कभी गलत नहीं हो सकता. Can kumbhak help me overcome snoring and sleep apnea? So you will have to understand why snoring happens. है ना, किसी चीज का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको पहले समझना पड़ेगा स्नोरिंग क्यों हो रहा है. So there is an obstruction हो रहा है कुछ.
इतना तो हम लोग सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं. विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन स्नोरिंग कैनॉट हैपन. नाउ यू थिंक ऑब्स्ट्रक्शन इज हैपनिंग एट माई नेसल सेप्टम. नो, नॉट एट ऑल. नेसल सेप्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो स्नोरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है. टेढ़ा है मेरा नेसल सेप्टम तो हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत. आप सीधा करवा लो तो भी होगा. तो गड़बड़ी ये है कि जब हम पाश्चात्य दुनिया को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं तो केवल बाहरी चीजें देख सकते हैं. आपकी सांस लेने की क्षमता कहां से आती है? आपकी लंग की स्ट्रेंथ से आती है कि नहीं आती है? अच्छा, दो तीन चीजें और समझ लीजिए. जब आप थक जाते हैं तो स्नोरिंग बढ़ती है कि कम हो जाती है? जब आप थक जाते हैं तो स्नोरिंग बढ़ जाती है. नॉर्मली जिनको स्नोरिंग नहीं होती है, नॉर्मली उनको भी होती है थोड़ी थकने के बाद में. तो जब एनर्जी लेवल आपका कम हो जाता है तो क्या क्या फंक्शन करना बंद कर देगा? सबसे पहले तो आपकी लंग पे इंपैक्ट आएगा ना, क्योंकि सांस तो आप लंग्स की स्ट्रेंथ से लेते हैं. नेसल सेप्टम से लेते हैं क्या सांस अपनी? बताइए. नहीं, आप लंग की स्ट्रेंथ से लेते हैं. तो लंग की स्ट्रेंथ कम होगी तो आपको सांस लेने में तकलीफ आ सकती है या स्लीप एपनिया भी हो सकता है. तो इसको पहले क्लियर कट समझ जाइए. आपकी लंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है बचपन से लेके अभी तक. तो हम बॉडी एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी एक्टिविटी में तो लंग की स्ट्रेंथ यूज होती है. जितना आप शारीरिक एक्टिविटी करते हैं उसमें लंग की स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है. लंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? लंग की स्ट्रेंथ केवल एक ही चीज से बढ़ती है. वो आप अपने आप भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा. इट विल बी टू सम एक्सटेंट, नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. पूरा थेरेपी तो नहीं हो पाएगा, मगर आप सांस रोकने की प्रैक्टिस अगर करेंगे ना, आप देखेंगे आपकी लंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तो बेसिकली आपकी ब्रेथ की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी सांस रोकने, ब्रेथ कंडक्ट होता है द एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ. होल्डिंग से आपकी लंग की स्ट्रेंथ बनती है. आपने होल्डिंग का कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई वेट उठाते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो भी आप ब्रेथ होल्ड ही तो कर रहे हैं. अगर फिजिकल एक्टिविटी से भी किसी की लंग की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वो ब्रेथ होल्ड से ही बढ़ रही है. आज के टाइम पे आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्टली स्ट्रेंथ बढ़ाइए. पहली बात ये अटमोस्ट नेसेसरी है आज के टाइम पे. कुंभक हर एक के लिए कंपलसरी होना चाहिए. तो आपकी ब्रेथ होल्ड की स्ट्रेंथ ही आपकी लंग की स्ट्रेंथ है. तो एक फैक्टर ये कि लंग की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे तो आपके जो स्नोरिंग है या एपनिया है उसमें एकदम से राहत मिलती है. नाउ सेकंड स्टेप, अगर आपके लंग में ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी आपके बॉडी में हीट कम है, गर्मी कम होती है, तो कफ डिपोजिशन होता है. इसको आयुर्वेद में कहते हैं कफ वात दोष. तो आप कफ को निकालते जाओ वापस आता जाएगा, निकालते जाओ वापस आता जाएगा. वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है. नेबुलाइजिंग करना ट्रीटमेंट नहीं है. ऑक्सीजन लेना ट्रीटमेंट नहीं है. आप ये समझिए, सपोर्ट है. आप सपोर्ट लेके जिंदगी जीना चाहते हैं क्या? पहले ये डिसाइड कर लो. तो ये समझिए, जब जरूरत ज्यादा पड़े तो सपोर्ट ले सकते हैं, मगर ठीक तो करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा अपना. तो शरीर की गर्मी कैसे बढ़ा देंगे बताइए? अपने अंदर से बढ़ानी पड़ेगी, बाहर से बढ़ाओगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा. दोबारा से कुंभक करेंगे तो आपके शरीर की गर्मी वैसे ही बढ़ जाएगी. जितने लोग कुंभक करते हैं वो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं? अरे ये कुंभक करते ही हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई. अच्छा, और लोग किस तरीके से बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कुंभक करते ही ना डकारें बड़ी सारी आती हैं, यानी आपके शरीर में से चीजें फ्लो होना शुरू हो गई. दूसरी चीज कहते हैं कि हमारे गले में कफ आना शुरू हो गया, यानी कफ पिघल रहा है तो अब वो गले में जाएगा, पेट में जाके निकलेगा. कुंभक करते ही लोग कहते हैं अरे मुझे तो वो पंप लेना था ना, पंप लेना मेरा कम हो गया, जरूरत नहीं पड़ रही अभी मुझे. क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ती है, वो आपके कफ को पिघलाने लग जाता है और वो क्लियरेंस होती जाएगी.
लंग की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? आपकी लंग के जो टिश्यूज होते हैं एल्यूलाई वो बढ़ेंगी, उनकी ना स्ट्रेचेबिलिटी होती है, कितना फैल सकता है कितना नहीं फैल सकता। स्ट्रेचेबिलिटी कुंभक से ही बढ़ती है, वही नहीं होगा आपके जॉइंट सॉफ्ट हो जाएंगे, स्किन का टेक्सचर जो हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा। शरीर में जितने भी वो कहते हैं ना वो टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज हैं, कोनी पे, कंधों पे, बटक्स पे, एड़ी में, सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, लंग में जो डिपॉजिट आपका कफ है वो निकलना चालू हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी खांसी आने लग जाए, मगर वो गलत चीज नहीं है ना, निकल रहा है कफ आपका, गले में कफ आएगा, वो निकल रहा है कफ आपका। ठीक है, भूख बढ़ जाएगी, जठराग्नि बढ़ गई, डाइजेस्टिव पावर बढ़ गया, मेटाबॉलिक हीट बढ़ गई। वो जरूरी है ना, बूढ़ा होता जाता है इंसान, शरीर को छू के देखो ठंडा होता जाता है, कुंभक से वापस गर्म करेगा अपने आप को। ठीक है, तो एंटी एजिंग भी है ना? तो सही जगह पे काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। भाई मैनेजमेंट ही करोगे क्या? सपोर्ट ही लेना है क्या जिंदगी भर? नेबुलाइजिंग ले लेके जी रहे हैं, ठीक तो 100 साल में कोई नहीं हुआ, एक भी बंदा तो ठीक नहीं हुआ। जब जरूरत पड़े तो कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन क्या उसी के सहारे जीना है? कुंभक करिए और निकलिए इन सब चीजों से, आराम से निकल जाएंगे। Some people have multiple problems, chronic allergic sinusitis, nasal problem, polyps, fungal infection, which spreads from eyes and to nose, etc. Many of them have a lot of discharge, which is foul and smelly in nature, whether it is from chronic allergic rhinitis or other things. Excessive phlegm comes out. There is one person who asked us earlier also having greenish yellow phlegm with chest pain, with 5 years of smoking history and chronic bronchitis. Okay, so ये जो phlegm आ रहा है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग कंडीशंस में, तो इसमें कुंभक से कैसे राहत मिले? मैं एक ही थ्रेड से सभी को जोड़ रहा हूं। आप अपनी आंखें और अपनी बुद्धि को खुला छोड़ो, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही थ्रेड से सभी चीजों को जोड़ता हूं। आपने कभी मशरूम की फार्मिंग देखी है? मशरूम कहां पे ग्रो करते हैं? क्या वो धूप में उग पाएंगे? मशरूम क्या धूप में उगा पाएंगे आप उनको? नहीं। तो उनको छाए में उगाया जाता है, मॉइस्चर में उगाया जाता है, ठंडक में उगाया जाता है। ठीक है, फंगस क्या होता है? वही तो फंगस है ना, मशरूम भी एक तरीके का फंगस ही तो है ना। अगर आपके शरीर में गर्मी हो जाए तो क्या आपके शरीर में फंगस जिंदा रह पाएगा? तो फंगस क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता कम है। ध्यान से समझिए, गर्मी पैदा करने की क्षमता कम है। फ्लेम जिसे आप कह रहे हैं उसको श्लेष्म कहेंगे, उसको कफ बोलेंगे। फ्लेम जिसे बोल रहे हैं वही श्लेष्म है, वही कफ है। तो गर्मी से वो पिघलता है ना, गर्मी से वो पिघलता है। तो गर्मी नहीं है शरीर में तो पिघलेगा नहीं, शरीर के अलग अलग जगह पे डिपोजिशन होगा। जहां भी ये डिपोजिशन होंगे, क्या वहां पे बैक्टीरिया और वायरस नहीं पनपेंगे? ये बताइए। तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस जिसे आप कह रहे हैं, आइटिस जहां पर भी लगा हुआ है वो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। ज्यादातर इन्फ्लेमेशन ऐसे केस में इन्फेक्शन की वजह से होता है। या तो चोट लग जाएगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, या कोई इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन है। तो ब्रोंकाइटिस क्या? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से। तो वो क्यों है? क्योंकि शरीर में दोबारा से गर्मी पैदा ना हो। अच्छा, इसको और तरीके से समझते हैं। किसी को वायरल हुआ तो होगा लाइफ में, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है शरीर में? शरीर उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करता है, ऐसा समझिए। फीवर होता है आपको, फीवर होता है, शरीर क्या कह रहा है, कर रहा है, गर्मी कर रहा है ना, उस वायरस को मारने के लिए। कमाल की बात है, आप पैरासिटामोल खा लेते हो,
आप फिरंगियों के चक्कर में फंसे हो और कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया बीमार कर दी उन्होंने, फिर भी आंखें नहीं खोल रहे आप। शरीर ठीक करने के लिए गर्म कर रहा है, आप उसको ठंडा कर रहे हो गलत तरीके से, वो भी। अब तो आपका इन्फेक्शन बार बार आएगा, एक बार जाएगा फिर आएगा, फिर आएगा, अगली बार आएगा तो वो दवाई काम नहीं करेगी फिर आपकी। एंटीबायोटिक 15 साल के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है मालूम है आपको? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस कह रहे हैं ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ब्रोंकाइटिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ये सब इन्फेक्शन है ना। शरीर गर्मी पैदा करके, गर्म करके किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करता है। अगर कुछ समय तक आप उस गर्मी को झेल जाएं तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अब कमाल की बात है कि वो तो छोड़ो, गर्मी पैदा करने की क्षमता ही खत्म कर दी। अब कैसे ठीक होंगे? एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, नहीं होगा फिर स्टीरॉयड डालेंगे ना आपके ऊपर। स्टीरॉयड क्या होता है? आप जीने लायक नहीं है साहब, आपको थोड़ा ना आधा जीवन डाल देते हैं आपके अंदर, बस आधा कर देते हैं। स्टीरॉयड का मतलब यही होता है। आपको नहीं समझ, स्टीरॉयड आपकी इम्यूनिटी को क्रैश करता है ना, खत्म करता है। तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मुझे 100% तो नहीं आपको जीना चाहिए, आप 60% पे रहो, धीरे धीरे करके उसको और कम करेंगे और कम करेंगे और फिर बुझ जाएगा वो कभी ना कभी। हॉस्पिटल में जाना ही है ना सबको मरने के लिए। आजकल तो हॉस्पिटल में ही मौत होती, घर में तो होती नहीं। तो ये काम नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में सोल्यूशन नहीं है। क्या करें जी, यही है सोल्यूशन? नहीं साहब, हम ढूंढ नहीं रहे सोल्यूशन। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन की टेंडेंसी आपके शरीर में कम हो जाएगी अगर आप कुंभक करेंगे, कुछ समय में खत्म हो जाएगी। तो दोबारा से कहा, एक ही थ्रेड से आ रहे हैं ना। गर्मी अगर कम होगी तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होंगे, गर्मी अगर कम होगी तो अलग तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हमेशा होते रहेंगे। गर्मी अगर कम होगी तो आपका शरीर किसी को झेल नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका हिस्टामिन रिएक्शन होगा, जिसको एलर्जी कहते हैं। गर्मी अगर कम होगी तो आपका लंग की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, वहां पे डिपोजिशन होगा। गर्मी अगर अच्छी नहीं होगी तब आपको ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इस तरीके की चीजें होंगी। अब ये आप कैसे बढ़ाएंगे? अभी बताया जैसे कुंभक एकमात्र तरीका है। अब ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, हर तरीके से समझा रहे हैं, इधर से उधर से उधर से, कि आपको समझ में आ जाए, फिर आप एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लें। मगर आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, ये गारंटी है। आपके इनहेलर खत्म हो जाएंगे, स्टेरॉइड जो है धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाएंगे, चाहे टाइम जो भी लगे। हो सकता है किसी को 6 महीने में ठीक हो जाए, कोई 1 साल में ठीक हो जाए। मगर मैं अगर आपको एक डील देता हूं 3 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो क्या गलत डील हो गई? ऑप्शन है आपके पास में, एक बात बताइए, जिंदगी भर ढूंढना है या ठीक होना? तो ऐसी सुरंग में घुसिए जिसका अगला छोर जो खुला हो। अभी ऐसे में घुस रहे हैं जो बंद है ना। तो थोड़ा थोड़ा रूड होके बोल सकता हूं ना आपसे, आप तो मेरे अपने हैं, स्वामी के तो सब अपने होते हैं। आपके लिए ही मेरा जीवन है, तो आपने जीवन को एम्पावर करो, ये जरूर करो। जब बहुत जरूरत हो जाए तो उस वक्त में धीरे धीरे करके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, अगर आपने कोई केमिकल ले भी लिया तो चलो मान लिया, ठीक है, ओके, बट एक टारगेट रखिए। कुंभक करें, 3 महीने के बाद में कम से कम 50% केमिकल कम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 6 महीने कुंभक करें, नहीं कम कर देना मतलब उसको रिप्लेनिश कुछ और डालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी काम नहीं उल्टा सीधा बोलेगी। तो आप 50% आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाओ, फिर 6 महीने बाद 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाओ, नेचुरल मेडिसिन। 1 साल के बाद में नो मेडिसिन एट ऑल। चलिए कुछ लोगों में 1 साल का 2 साल भी हो जाएगा, इट्स ओके ना। 2 साल में अगर आप छूट गए सभी चीजों से
बहुत अच्छी बात है, 3 साल में छूट गए और बहुत अच्छी बात है। तो ये टारगेट रखिए, और जितना आप ये खाते जाएंगे, याद कीजिए एक दवाई से शुरुआत हुई थी ना, आज कहां पे पहुंचे हैं? तो ठीक तो हुआ नहीं, कोई 100 साल में ठीक नहीं हुआ, आप क्या सोचना आप हो जाएंगे? नहीं हो पाएगा। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है। उसको क्रिमिनल ना बनाओ, उसको एम्पावर करो, फिर आपकी लाइफ ही बहुत सुंदर हो जाएगी। There is a question about tuberculosis. Somebody suffering from tuberculosis and a chest tube has been fitted. There is an air leak in the chest tube. How to stop this air leakage? भाई देखो, जब आपका अगर कैथेटर डाला हुआ है तो वहां से थोड़ा लीक तो होगा, मगर एक बात बताइए, आपको दिमाग में क्या आ रहा है? मैं समझ रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि सांस रोकने से वहां से लीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सांस रोकना एक अलग चीज है, सांस लेना छोड़ना एक अलग चीज है। जब आप इसे रोकते हैं तो इसका एयर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपके बॉडी में भी एयर फ्लो बढ़ता है। जब आप रोक के रखते हैं ना सांस, उस समय आपके शरीर में हवा का पूरा रिसाव होता, फैलता है चारों तरफ, पूरे शरीर में फैलता। तो दैट इज ऑल्सो अ लीकेज। नहीं नहीं नहीं, हम जब रोक रहे हैं तो हवा नहीं रोक रहे। कुंभक हवा रोकने का नाम नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली हमको ऐसा लग सकता है कि हमने सांस लेके रोक लिया। आप जब किसी को घुसा मारते हैं तो सांस नहीं रोकते। जब आप अपने घुसे को झेलते हैं तो सांस नहीं रोकते। जब आप वेट उठाते हैं तो सांस नहीं रोकते, मगर उसमें आप ब्रेथ का लीकेज रोकते नहीं है। बेसिकली इंटीग्रेट करना है अपनी बॉडी को टू डू एन एक्शन। इसमें सांस का अगर लीकेज भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो कुंभक इज नॉट, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू कॉल इट, ये ब्रेथ होल्ड जो है वो एक बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं है कुंभक का। बट क्या करें, इसी तरीके से लोग समझते हैं, तो इसको हमको यूज करना होता है ना। कुंभक इज बेसिकली योर बॉडीज एबिलिटी टू मेक एन एक्शन। कोई भी काम काज आप कुंभक से ही करते हैं। तो आपका हार्ट बीट जो होता है वो हार्ट का एक अलग कुंभक है, उसकी वजह से हो रहा है, मगर उसके लिए आप सांस नहीं रोक रहे। तो कुंभक इज अ बिगर अम्ब्रेला। इसको बहुत रिसर्च करना है इसके ऊपर। 100 साल भी करेंगे ना रिसर्च तो भी कम होगा। मगर क्या है कि रिसर्च करने में टाइम लगा के फिर कोई ठीक करें, इससे पहले आप ठीक हो जाओ, रिसर्च तो चलता रहेगा। आप ना भी समझे ना, कुछ भी ना समझे, आप प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाओ। सीधी सी बात, कितना भी ज्ञान ले लो, मैं कितनी सारे तरीके से आपको समझा दूंगा, मगर आप ठीक हो जाएंगे नहीं होंगे। तो कुंभक करना शुरू कीजिए, ठीक हो जाएंगे। बाकी रिसर्च चलता रहेगा, उसके और हम डेफिनेशन लेके आते रहेंगे। बट हाँ, कैथेटर डाला है, वहां से हवा की लीकेज होती है, कुंभक आप कर सकते हैं। अगर आपका ये सवाल है तो कुंभक आप आराम से कर सकते हैं। कुंभक करेंगे तो क्या होता है, रीजनरेशन बढ़ता है। कैथेटर जब हटाएंगे तो वहां पे फीलिंग हो जाएगी, जल्दी होगी। कुंभक से आपकी फीलिंग या रीजनरेशन या रीग्रोथ कहीं पे अगर है तो वो भी बढ़ता है, तो सपोर्ट भी मिलेगा। तो एक तरीके से ये रिहैबिलिटेशन थेरेपी भी हो जाएगी कि जैसे जैसे आपका सिस्टम रिकवर होना शुरू होगा तो जो भी उसके अंदर खामियां क्रिएट की हैं वो रिकवर हो जाएंगे। Swamiji, I think this will be the last question. So, doctors, या मतलब मुझे बताया गया फाइब्रोसिस, परमानेंट डैमेज है, COPD, ILD, these are things which cannot be reversed, और ILD जैसी चीज सिर्फ क्या बोलते हैं, स्कैन करके डायग्नोसिस करके ही पता चलता है इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। So are these reversible, and how will a person know that these are getting reversed in that person? Who will tell you you are becoming healthy? आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके मन में खुशी आ गई, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ फील हो रहा है, आपको एनर्जी लग रही है, कौन बताएगा ये सब आपको? आप ही बताएंगे ना। तो आप हेल्दी हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, ये भी आजकल पूछने का सवाल है क्या, कि मुझे कौन बताएगा कि मैं ठीक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? क्योंकि आप ठीक हो ही नहीं रहे, इसलिए सवाल आ रहा है ना। आप तो ठीक हो ही नहीं रहे, इसलिए सवाल आ रहा है। जब ठीक होने लग जाएंगे तो आपका शरीर
आपको बताएगा ना कि आप ठीक हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये। देन इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो गया या फिर फाइब्रोसिस हो गया, ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, उसको भी आप समझिए। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? ऐसे मान के चलिए कि एक पेड़ से टहनी तोड़ लो और उसको लचका के देखो तो वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। 10-15 दिन उसको धूप में छोड़ देंगे तो हार्ड हो जाएगा। क्या हुआ? पानी निकल गया। जब भी आपके शरीर में से पानी टिक नहीं पाता आपके शरीर में, या आपके शरीर की पानी की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर आपके शरीर के अंदर फाइब्रोसिस होता है। उसका एक रीजन है फैलाव। आपके शरीर में पानी का फैलाव ठीक से नहीं हो पाता, जो कि प्रेशर डालने से ही फैलाव शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो कुंभक करते ही फाइब्रोसिस ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं आपको, दूसरे तरीके से भी बताता हूं कि जब भी आप कुंभक करते हैं आपकी बॉडी में हीट फैक्टर बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके हार्ट टिश्यूज सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके जॉइंट अगर स्टिफ हैं तो लचकीले हो जाएंगे। ऐसा होने का एक और कारण है, कुंभक से आपके शरीर का थर्मल इकोसिस्टम या कह लो कि टेम्परेचर का जो मैप है शरीर का वो ठीक होता है। एक तो प्रेशर का मैप ठीक होता है, जो कि सबसे इलाज अगर किसी चीज को कहा जाए तो प्रेशर का मैप ठीक करने को ही कहा जाता है। दूसरा, टेम्परेचर का मैप आपके शरीर का ठीक होता है। जैसे टेम्परेचर का मैप ठीक होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो उस समय आपकी बॉडी ना पानी की डिमांड बढ़ा देती है। क्योंकि आपका शरीर गर्म होगा ना जैसे ही, वैसे ही आप ज्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे। तो उससे आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे 12 ग्लास पानी पीना। अगर शरीर की डिमांड नहीं है तो शरीर 12 ग्लास पानी रखेगा? मुझे बताइए। आपने अगर डिमांड क्रिएट नहीं की अपने शरीर में और आपको ऐसे ही बोल दिया गया कि 12 ग्लास पानी पियो पूरे दिन में, तो आपका शरीर उस 12 ग्लास पानी या 12 लीटर पानी जो भी है उसको रखेगा क्या? निकाल देगा। पियोगे निकाल देगा, पियोगे निकाल देगा। तो फायदा कब होगा आपको? अगर शरीर पानी रखने लग जाए तभी फायदा होगा, तभी वो फाइब्रोसिस जो है वो जाएगा, क्योंकि वो पानी की कमी की वजह से। तो कुंभक करने से आपके शरीर में हीट फैक्टर जो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो फैलाव होता है, हीट बढ़ता है तो डिमांड आती है। इसी को हम कहते हैं वात पित्त। जब करेक्ट होगा तो आपका वात पित्त कफ को रेगुलेट करता है, तीनों चीजें करेक्ट होंगी और ये फाइब्रोसिस ठीक हो जाएगा। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज बड़ी आसानी से, जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर से ही बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके लंग की जैसे ही बढ़ेगी, आईएलडी आराम से ठीक। आईएलडी 100% ठीक हो सकता है। Sorry, I'm sending one more question. Two more questions I will take. One is somebody suffering from upper back pain for the last few years and with a sitting job and has dust and seasonal allergies as well. Will this program help him? पहली बात तो आप डिफाइन गलत कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। मुझे सिटिंग जॉब से ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सिटिंग जॉब तो बहुत लोग करते हैं। क्या सभी को आती है? सभी को तो नहीं आती, कुछ लोगों को आती है। तो आप डिफाइन अगर सही तरीके से करोगे अपनी प्रॉब्लम को तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, इसको समझिए। आपकी प्रकृति क्या है? कफ वात प्रकृति है। कफ का एरिया क्या होता है शरीर में? चेस्ट एंड अबाव। तो जो कफ वात प्रकृति के लोग होंगे उनको चेस्ट एंड अबाव में प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। तो ऐसे लोगों को क्या क्या होता है? ऐसे लोगों को लंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, थायराइड का इश्यू हो सकता है, ऐसे लोगों को माइग्रेन का इश्यू हो सकता है, ऐसे लोगों को एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, ऐसे लोगों को ग्लूकोमा की शिकायत हो सकती है, ऐसे लोगों को सर्वाइकल हो सकता है, ऐसे लोगों को अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, ऐसे लोगों को स्टिफनेस हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है ना, लॉक जॉ हो सकता है। ऐसे लोगों को अगर आगे जाके अगर उनको न्यूरो प्रॉब्लम आए तो माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो अगर डिफाइन आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो जड़ क्या है? आपकी प्रकृति क्या है? कफ वात प्रकृति। ऐसे में और क्या होता है? बॉडी में टेम्परेचर कम होता है, तीखा खाने का मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है, गर्म चीजें लेने का मन करता
हाँ, तो डाइजेशन जो होती है वो वीक होती है। और क्या हो सकता है, एड़ी में दर्द आएगा, नीचे के पार्ट पाँव में ठंडक रहेगी, पाँव ठंडे रहेंगे तो फिर आपके कमर तक उसका इश्यू आ सकता है। तो पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे से वेरी करेंगे, मगर जड़ क्या है, कफवात इशू। कफवात इशू में दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंटली चाहिए ही चाहिए आपके शरीर को। एक, गर्मी चाहिए आपके शरीर को, पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रेशर चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको क्या होगा आगे चल के, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हार्ट का इरिदमिया, अरिदमिया, रिदम बिगड़ने के चांस होते हैं। तो क्या चाहिए ऐसे इंसान को, पहला टेम्परेचर चाहिए उनके शरीर में, दूसरा प्रेशर चाहिए। दो चीज तो उनको चाहिए ही चाहिए, जितना डालेंगे उतना फायदा होगा। तो अब मुझे बताइए कि उनके लिए तो कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि सोल्यूशन यहीं से मिलेगा। और किसी चीज से सोल्यूशन मिलेगा बता दीजिए, नहीं मिलने वाला। हाँ, टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, मगर आप इलाज तो शुरू करो, टाइम जितना भी लगे। ठीक तो है। कुछ आंसर स्वामी जी के मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला आईएलडी 100% क्योरेबल है, तो क्या ब्रोंकियल अस्थमा भी 100% ठीक हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर गलती से आपने लंग का कोई पार्ट रिमूव ना करवा लिया। ठीक है ना, उस पर भी ठीक तो हो जाएगा, मगर क्या है कि हम कैपेसिटी को तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना इस तरीके से। अगर आपकी बॉडी में सब कुछ अभी तक है, अभी तक कुछ काट कूट के नहीं निकाला हुआ, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। Thank you, Swamiji, for taking time out to answer questions. We have covered this, Dinesh Khanna ji, that frequent cold, cough, infections वगैरह हम cover कर चुके हैं. So we'll not get into every single disease defined by allopathy. Okay. तो कोई भी respiratory ailments हैं, जो भी आपको problem है, we have told you that we have a unique diagnosis. So whether you have COPD, ILD, bronchial asthma, bronchitis, sinusitis, this itis, that itis, उसके पीछे कारण है कि शरीर में क्या चीज वीक हो गई है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. That is what we identify with the diagnosis. So irrespective of the problem that you have, okay, whether respiratory ailments or anything else. So uh, based on that आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन दिया जाता है. वट एवर प्रैक्टिसेस दैट यू लर्न आर कस्टमाइज्ड एज पर योर सिस्टम. ओके. तो ये दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स. सो कुछ लोगों के अगर और सवाल हैं तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए. वी विल कीप द वेबिनार ओपन फॉर अ लिटिल व्हाइल. इफ यू हैव क्वेश्चंस वी कैन टेक. लीव योर नंबर्स.